Hello everyone. So in this video we are going to solve that test paper which I provided you. जो आपको टेस्ट पेपर दिया था उसको इसमें सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. So please go through the video and find how many questions are correct in your copy. So I think you have solved this test paper in your copy. So please open your copy and match how many questions are correct. Okay, now we are going to start the video. Okay, the first question is that write EE or EA in each word. So there are two words. First one I want to say there is a mistake, slight mistake, and I informed you in WhatsApp. This is TR. Okay, it is like that. So the first word is TR space dash. It means and that is last word is S. So you have to fill either E or EA. So from these two words you have to fill. So which word we will fill? We will fill E. So this word will become tree. What it will become? It will become tree. Okay, trees. It means number of trees. Okay, the second word is PL space SE. So what we will fill? We will fill PLEASE. So it will become please. What will become? It will become please. So the second word is please. Okay. Now third word. So one thing before someone asked that why it is written question 3. कुछ लोग कह रहे थे कि क्यों क्वेश्चन 1 नहीं लिखा है, क्वेश्चन 3 4 लिखा है यहाँ पे. सो मैं कहना चाहता था कि ये एक टेस्ट पेपर है जो आपके लिए मैंने बनाया है और एक लंबा टेस्ट पेपर है. इसके कई पार्ट हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है, वोकैब है, कई तरीके के पार्ट है. तो ये पहला सेक्शन है उसका, सॉरी दूसरा सेक्शन है. रीडिंग को छोड़ करके ये दूसरा सेक्शन है जिसमें हम केवल ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. एज यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन ग्रामर टेस्ट. सो दैट इज़ द रीज़न ग्रामर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो रहा था, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू है. आप इसको 1 मान के चलिए, 1 2 and 3. ओके. So question number doesn't matter, you have to only solve that. So total marks is 10 and here approximately 10 questions. Okay. So now we are going to for second question. Question is that match the word which they with their correct meaning. With their correct meaning, there are two words and we have to match these word with their correct meaning. Here is the meaning of the word. So in explanation of that lesson I have explained about chatting. Chatting, it means to talk to each other or one another. So that is chatting, it means informal talking. Chatting, it means informal talking. And in that lesson I have explained that triumphantly. What is the pronunciation? Triumphantly. It means happy and proud. As I explained earlier in that lesson, so it was related to happiness of a person. So triumphantly, it means happy and proud. So how we will match this? Chatting for informal talking and triumphantly for happy and proud. Okay. Now next question. Question number 3 in this part. So write opposite of light. You have to write opposite word of light. So what will be opposite of light? That will be dark. If one side opposite, it means just opposite, उल्टा. तो इधर लाइट है तो इधर क्या है? डार्क है. That is the opposite. Okay. Now next question. Write opposite of happy by adding an and im.
Do you remember in lesson we have discussed about an and im? Some word we make opposite by adding im, and some word can be make opposite by adding an. So happy, what will be the opposite of happy? So if we will add un, so it will become unhappy. So that is the answer. Happy always take un, so that is unhappy. Happy, unhappy. Okay. Now next question. Question is that fill in the blanks as given in the example. So one example is given for you. For example, tiny, tinier and tiniest. So it is a degree. Before solving this question, I want to explain something. Okay. सो डिग्री, व्हाट इज डिग्री? डिग्री का मतलब होता है बेटा इंटेंसिटी, बारंबारता, तीव्रता. जैसे टीनी का मतलब क्या होता है? छोटा. इट मीन्स स्मॉल, वी कैन से. टीनियर इट मीन्स स्मॉलर, इन अदर वर्ड वी कैन से स्मॉलर. एंड टीनिएस्ट दैट इज स्मॉलेस्ट. सो एक्चुअली होता क्या है, ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि यह किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की स्थिति बताने के लिए. जैसे टीनी शब्द वन ऑब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट या वन पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एक इंसान हो, एक इंसान हो, एक सामान हो, एक कोई वस्तु हो, तो उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं? टीनी. For example, it is a teeny tree. यह पेड़ कैसा है? बहुत ही छोटा है. टीनी, वेरी स्मॉल है. क्या है? वेरी स्मॉल. इस तरह से केवल एक ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ एक पेड़ की बात किए. लेकिन जब हम टीनियर का इस्तेमाल करते हैं तो दो लोगों के बीच तुलना की जाती है. जैसे अगर हम कहें कि वी कैन से द पेन इज टीनियर देन द बुक. पेन क्या है? बुक के सापेक्ष छोटा है. बुक की अपेक्षा पेन क्या है? स्मॉल है, टिनी है, छोटा है. सो दैट इज़ द कंपैरिजन. दो चीज़ों के बीच जब कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पर टिनियर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक, दो लोगों के लिए. टिनी एक लोगों के लिए, टिनियर दो लोगों के बीच जब तुलना की जाती है, और टिनिएस्ट दो से अधिक लोगों के बीच तुलना की जाती है. अब हम इसके बारे में बात करेंगे. जब हम दो लोगों से अधिक, यहाँ पर दो लोगों से तुलना करेंगे, यहाँ पर एक लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, ये दो लोगों के लिए इस्तेमाल होगा. ये जो है कि दो से अधिक, इट मीन्स मोर देन टू. मोर देन टू. जब मोर देन टू होंगे यानी थ्री होंगे, या तो थ्री होंगे या थ्री से ज़्यादा होंगे, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं. तो वहाँ पर जो है कि हम थर्ड फॉर्म इसे कहते हैं. अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में देखें तो इसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. तो फिलहाल ये ज़रूरी नहीं है, बस इस तीसरा जो फॉर्म है इतना जानना है. इस तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल दो से अधिक लोगों के लिए करते हैं जब हम तुलना करते हैं. ये तीनों वर्ड तुलना के लिए होते हैं. ये बेटा तीनों तुलना के लिए होते हैं, लेकिन ये केवल एक पर्सन के लिए होता है, ये दो लोगों के बीच होता है, और ये दो से अधिक लोगों के बीच होता है. जैसे अगर हम कहें इट इज़ द टीनिएस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इस जंगल में ये टीनिएस्ट है, सबसे छोटा पेड़ है. इससे छोटा पेड़ जंगल में हो ही नहीं सकता. So that is, there is a comparison between all the tree of the forest to one tree. एक तरफ क्या है?
एक पेड़ है, एक तरफ जंगल का एक पेड़ है, दूसरी तरफ जंगल के सारे पेड़ हैं, ऑल ट्रीज हैं। इन दोनों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। इट इज द टीनिएस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल का ये सबसे छोटा क्या है, पेड़ है। तो इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से जैसे अगर हमने अभी कहा था स्मॉल का मतलब छोटा, स्मॉल का मतलब छोटा, दूसरा है स्मॉलर, और इससे उससे भी छोटा, जो एक तो छोटा हुआ, यह उससे भी छोटा होता है। मतलब जो जैसे सपोज दैट एक ये है, इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और एक होता है स्मॉलेस्ट, ये उस ग्रुप में सबसे छोटा है। जैसे ये सबसे छोटी बिंदु है। समझ में आया? जैसे अगर हम कहें दिस बॉल this ball is smallest in this is we can write like this sentence error. This is the smallest ball in the basket. ये टोकरी का सबसे छोटा गेंद है। दिस बॉल इज स्मॉलेस्ट, ये जो टोकरी में जितने सारे बॉल रखे हैं, जैसे एक टोकरी में ढेर सारे बॉल रखे हुए हैं, एक जो ये बॉल हमने उठाया, यह एक पर्टिकुलर बॉल इस पूरी टोकरी का सबसे छोटा बॉल है। तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉल इन द बास्केट, इस टोकरी का सबसे छोटा बॉल है। इस तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, सो नाउ we are going to solve this. So right wise one word is written good, one is done for you as I explained earlier. So second is good, here is it is written good. So second form of good is good, better, and third one is best. इसका क्या मतलब हुआ? गुड माने अच्छा, हिंदी में अगर कहें ये अच्छा है। बेटर माने दो लोगों में अच्छा है, जैसे दो लोगों के बीच तुलना की जाए, जैसे राम है और श्याम की तुलना की जाए, राम और श्याम, हम कह सकते हैं कि राम इज बेटर देन श्याम। अगर हम दो लोगों की तुलना कहें तो हम कह सकते हैं कि राम इज बेटर देन श्याम, हम ये कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं। जब हम बेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तीसरा क्या था, हमने कहा कि तीसरा क्या है, बेस्ट है। बेस्ट का मतलब दो से अधिक लोगों का एक ग्रुप हो, उसमें केवल एक ही है जो सबसे अच्छा है। जैसे हम कहें राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट प्लेयर, राम इज द बेस्ट प्लेयर। राम क्या है, सबसे अच्छा खिलाड़ी है। इट मीन्स वो सबसे, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। तो यहाँ पर गुड का बेटर होता है, बेटर माने उससे अच्छा, और बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। बेस्ट इट मीन्स सबसे अच्छा। ओके, सो वी हैव टू यूज दीज वर्ड लाइक दिस। जो इस तरह के वर्ड आते हैं जिनके तीन रूप होते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट में, इसी सेंस में यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज put was were in the following blank. So here is space, you have to fill either was or were. If you remember I explain you this in class 3. क्लास 3 में मैंने ये बताया था कि कहाँ पर was इस्तेमाल करना है, कहाँ पर were. was कहाँ पर इस्तेमाल करना है, जब एक कोई हो, कोई एक ऑब्जेक्ट हो, कोई एक सब्जेक्ट हो, ओके, कोई एक पर्सन हो, कुछ भी हो जो केवल एक हो, तो वहां पर वॉज का इस्तेमाल करना है। ओके, अब यहां पर क्या है, कह रहा है कि दूसरा वर,
एक से अधिक जहाँ हो, या तो दो हो या दो से अधिक, या मोर देन टू, वी कैन राइट हियर मोर देन टू। जब वन हो या वन से टू हो या टू से अधिक हो, मोर देन टू, तो वहाँ पर हमको वर का इस्तेमाल करना है। दैट इज वर, नॉट वेयर, इट इज वर। ओके, सो सी द एग्जाम्पल, माई टॉयज। टॉयज इज अ प्लूरल because here s is s shows that it is more than one toy, more than one toy। ये जो toy है ये बताता है कि ये क्या है, more than one toy। so if it is a more than one toy, so obviously what you will fill here, you will fill, as I say, you will fill were। my toys were broken, मेरे खिलौने क्या हुए, टूट गए, टूटे थे। ओके, like this। Next question, here connect the pair of sentences using and or but। दो वर्ड दिए हैं and या but, दोनों में से कोई एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने हैं, कोई एक लगा करके जो ये दो नीचे के दो सेंटेंस दिए उनको जोड़ना है। इनमें से या तो हमें एंड लगाना है या तो बट लगाना है। डू नॉट ऐड बोथ, add only one, either and or but। so the first sentence is Raju plays cricket, Raju plays cricket, he also plays hockey। so first see the structure of sentence, here he is came for Raju। so subject, यहाँ पर जो subject है वो क्या है, सेम है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है, दोनों सब्जेक्ट सिमिलर है। जब कोई दो नाम सिमिलर हो या दो सब्जेक्ट एक सिमिलर हो, एक ही हो, तो उनको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती बेटा, उनको हमेशा एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर जब राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही आल्सो प्लेज हॉकी, तो ही इज़ केम फॉर राजू। सो एक बार हमने राजू लिखा तो हमें दोबारा ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कैसे बना देंगे, हम इसको ऐसे बना देंगे, राजू plays cricket and sorry what happened, there is a mistake, sorry there was a error। okay, right now we are going to work। so Raju plays cricket, you can see this is all cricket, and now add and hockey, sorry hockey। okay, you can say hockey, it is right that। so first another thing is that before answering this type of question you have to found the nature of work। यहाँ पर जो कार्य की जो प्रकृति है वो हमें जानना है। इसको बनाने से पहले राजू क्या है, वो दो काम करता है, दोनों पॉजिटिव वे में करता है, एक क्रिकेट खेलता है, एक हॉकी खेलता है, दोनों कार्य समान हैं। जब कोई चीज़ समान होती है तो वहाँ पर एंड लगा कर जोड़ते हैं। जब दोनों काम अपोजिट होता, जैसे दो काम अगर अपोजिट होंगे तो वहाँ पर बट लगेगा। जैसे अगर एक बट का एग्जाम्पल देखें तो एक नेगेटिव आ जाएगा, अपोजिट होगा। राजू, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से राजू प्लेज क्रिकेट but not play here add do, but do not play hockey। ये इस तरह से बनेगा। जब बट लगता है तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट आ जाता है।
तो बट हमेशा जो है कि नेगेटिव सेंस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब दो कार्य हों, दोनों की नेचर अलग अलग हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वहाँ बट का इस्तेमाल करेंगे, और जब दोनों पॉजिटिव हों तो वहाँ पर एंड का इस्तेमाल कर देंगे। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, नॉट लास्ट, here is 3 more question. So okay, now here most of student make mistake, do not write the name of class teacher. Here it is written punctuate the sentence, you have to punctuate. punctuate का मतलब कामा, कामा लगाना है तो कामा लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, अपस्ट्रफी लगाना, सॉरी अपस्ट्रफी अगर लगाना है तो हमको अपस्ट्रफी लगाना है, जैसे अपस्ट्रफी इस तरीके से। अगर हमें इन्वर्टेड कामा लगाना है तो इन्वर्टेड कामा लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगाना है तो सिंगल लगाना है। तो यहाँ पर हमें पंक्चुएशन करना था, न कि अपने क्लास टीचर का नाम लिखना था। So you have to punctuate this. So, for example, here he is saying, who is your class teacher? He is asking a question. So put a question mark. That is punctuation. Do not write the name of your class teacher. ओके यहाँ पर क्लास टीचर का नाम नहीं लिखना है, केवल इसको पंक्चुएट करना है। यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क किसे कहते हैं? जैसे कामा हो गया, इन्वर्टेड कामा हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कामा हो गया, इस तरीके के पंक्चुएशन मार्क होते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं, अपस्ट्रफी हो जाता है। ओके, सो हियर इट इज अ क्वेश्चन, यू कैन सी हु इज योर क्लास टीचर, इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, सो पुट अ क्वेश्चन मार्क, राइट दिस, हु इज योर class teacher, put a question mark. So only you have to put a question mark here. So that is, do not write the name of class teacher, class teacher का नाम नहीं लिखना है। okay, now put the letters in the right order. Do you remember Neha's alarm clock? So that is a word. Here 5 word, M-R-A-L-A. If you will arrange it, it will become alarm, A-L-A-R-M, alarm. So that word will become alarm. Okay, so now here fill in the blank using behind or under. Two things you have to fill, either behind or under. दोनों में से कोई एक भरना, या तो बिहाइंड भरना था या अंडर भरना है। हो बिहाइंड कहाँ भरते हैं, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई ये चीज़ हो, जैसे ये कोई एक दीवार है, इसके पीछे आप छुप गए हो, ठीक, तो ये बिहाइंड है। क्या है? बिहाइंड, आप किसी के पीछे छुपे हुए हो, बिहाइंड है। अगर ये एक टेबल है, सपोज दैट, क्या है ये एक टेबल है, और जो है कि आप इसके नीचे छुप गए हो, इस टेबल के नीचे छुप गए हो, तो यहाँ पर क्या भरना है? अंडर। यानी जब किसी चीज़ के नीचे, जैसे हम बेड के नीचे छुप जाए या जो है कि टेबल के नीचे छुप जाए, तो वहाँ पर अंडर लगता है। अगर हम किसी के पीछे छुप जाए, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो डोर हो, कुछ भी हो, तो या जैसे हम कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे छुप जाए, तो वहाँ पर हमको क्या लगेगा? बिहाइंड लगेगा। ओके, सो हियर द सेंटेंस इज सेइंग, यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, मैंने एक बुक खो दिया। फिर अगेन ही इज सेइंग, आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, इसको मैंने हर जगह खोज डाला। फिर आई लुक्ड, फिर उसने देखा, मैंने देखा कहाँ? अ डोर, डोर माने दरवाज़ा। अब दरवाजे के अंदर तो आप छुपोगे नहीं, दरवाजे के पीछे छुपोगे, तो यहाँ क्या लिखोगे? लुक्ड अंडर, सॉरी बिहाइंड, लुक्ड बिहाइंड अ डोर, यहाँ पर द डोर होना चाहिए था, looked behind the door. Okay, so that is all about your test paper. So please match, if there is any mistake, correct it, and score how many questions, answers are correct.
Okay, thank you so much for watching this video.